हेलो एंड वेलकम टू लेक्चर नंबर 2, जहां पे मैं आपके साथ बात करने वाला हूं द इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग फ्लो एंड कोहेरेंस इन योर एसे. See, you might have heard this quote that balance is the key to life. Of course, balance is very, very important. Do you see this elephant on the football? It's very difficult for the elephant to maintain that balance. Isn't it very difficult for us as well to maintain that balance in life? I mean, UPSC, state PCS, personal issues with parents, financial problems, yet we have this aspiration, we have this ambition that we want to do something big. It becomes very difficult to, sort of balance out all these things. Life at times can become very, very overwhelming. So therefore, balance is the key to life. Similarly, there might be a situation that you have been given a topic on which you have to write an essay. And you become very excited that, oh, this topic is very easy. I can write a 2000 word essay on this. And out of that excitement, whatever comes in your mind, you start penning that down. You start writing that down. But understand one thing. Wait, stop. Is it very important that what you're writing is correct? Because in a very excited state of mind, you would ignore the balance. See, understand one thing, you must have seen people drinking too much. And when they drink too much, they do all kind of absurd things. They do all kind of strange things. A person who is heavily drunk, it'll be very difficult for him or her to drive the car properly or to walk properly. So therefore that person would lose balance. Because why? The person who's drunk, because under the influence of alcohol, he's also under the influence of high emotions. Now, those emotions might be happy emotions, those emotions might be sad emotions. We don't know about that. But when you're excited, excitement or resentment, whatever, you end up saying things out of balance, out of proportion. Similarly, when you have a topic in front of you, if you end up writing whatever is coming in your mind out of excitement, you would lose balance. And if you lose balance, then your essay will have a major problem of not being coherent. So let's understand what this coherence and flow is all about. Remember flow. The flow and coherence, these are two important elements of a well-written essay. जब एक essay में good flow और coherence होता है, then whosoever is reading your essay, he or she would be very happy, would be very engaged. He would be like, I want to read it more and more and more, like a novel. Now, you might have, some favorite novelist. For some of you, it might be Chetan Bhagat. अक्सर हम देखते हैं कि अगर हम अपने फेवरेट मनपसंद नॉवेलिस्ट की किताब पढ़ते हैं तो हमारा मन नहीं करता कि वो किताब खत्म हो. We keep on reading. I mean, I'm just taking an example of Chetan Bhagat. Please don't blame me that कि कुबेर सर आपने नाम लिया तो किसका लिया. I'm just saying an example. But the point is that the reader wants to go into the depth of the writer's mind. That जो writer है, यानी कि आप है, आपका क्या chain of thought है. That is what your job is. That by flow and coherence, you have to make the examiner's job easier, that he or she would want to read your essay till the very end. Now, what is flow? Flow refers to the logical and sequential progression of ideas within an essay. एक जो वेल रिटन ऐसे होगा तो सिंपल सी बात है, उसकी अच्छी इंट्रोडक्शन होगी, उस ऐसे की बॉडी होगी, बॉडी में मल्टीपल डायमेंशंस होंगे. जितने डायमेंशंस आप लेके आ सकेंगे. नाउ डोंट आस्क मी सर हाउ मेनी डायमेंशंस. इट कुड बी 6, इट कुड बी 7, इट कुड बी 5, इट कुड ऑल्सो बी 4, but depends upon how well you have portrayed those dimensions. But a good well-written essay should have this structure. Like अगर हम एक बिल्डिंग में जाते हैं, उस बिल्डिंग का एक फर्स्ट फ्लोर है, एक सेकंड फ्लोर है, एक थर्ड फ्लोर है, एक ग्राउंड फ्लोर है, तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि सीधा आप बिल्डिंग के थर्ड फ्लोर पे ही जाएंगे, फर्स्ट और सेकंड फ्लोर वहां पे होगी नहीं. It is not like that. So a well-written essay will have a proper structure of introduction, of body and of conclusion. जहां पे जो ideas हैं within each section, within introduction, within the body and within the conclusion, they are very well connected. They are very logically connected.
The reader has to be able to see that how each sentence, how each paragraph, and how each section is building upon the previous one and leading up to the next. Coherence refers to the unity and consistency of ideas within one essay. Coherent essay में आपके पास एक स्टेटमेंट दिया गया होगा, उस स्टेटमेंट के आधार पे आप अपने आर्ग्यूमेंट्स लिखेंगे, लेकिन आप अपने आर्ग्यूमेंट्स लिखेंगे बेस्ड ऑन द एविडेंसेस. सो आपके जो आर्ग्यूमेंट्स होंगे दे विल सर्व एज अ जस्टिफिकेशन, एज एन एविडेंस टू द थीसिस स्टेटमेंट दैट यस, ये जो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं ये कोहेरेंट है, ये सिंक्रोनाइजेशन में है विद द टॉपिक बीइंग गिवन टू अस. Essay can also be focused on a single topic, and all of the ideas in the essay must be relevant to that particular topic. So for example, if the essay is talking about cybersecurity, you have to write all ideas related to cybersecurity, right? I mean, you can't just write random stuff about saying about climate change. Climate change is one topic, but is that related to cybersecurity? Perhaps no. If you want to establish a connection between climate change and cyber security, if you want to establish this connection between climate change and cyber security, you'll have to think out of the box, perhaps think of an example. और इतना टाइम होता नहीं है हमारे पास इतना सोचने के लिए, so that you can relate climate change with cyber security. But if I ask you that, okay, the topic is cyber security, the topic is cyber security, but you have to relate that with artificial intelligence. Somewhat easier. You can perhaps correlate these two topics. So let's understand one thing, that the flow of the ideas will have to be relevant to the topic. Let's not do one thing, हम ये काम ना करें कि जो हमारे माइंड में आ रहा है बस वही बोलते रहें, वही लिखते रहें. थोड़ा सा समझो, गेम कोहेरेंस की है. It's all about playing with your words. You have to be very smart with your words. Now, the benefit of having flow and coherence. First, they make the essay much easier to read and understand. जब एक ऐसे में एक अच्छा फ्लो होगा, अच्छा कोहेरेंस होगा, तो रीडर को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी राइटर के माइंड को समझने के लिए, राइटर के ट्रेन ऑफ थॉट को समझने के लिए, या इस बात को फिगर आउट करने के लिए कि राइटर कहना क्या चाह रहा है. सेकेंडली, फ्लो और कोहेरेंस से ऐसे आपका और पर्सुएसिव लगेगा. तो जो रीडर है वो आपके आर्ग्यूमेंट्स को इजीली पढ़ सकता है, इंटरप्रेट कर सकता है, और वो देख सकता है कि हाँ यार, आपके जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं टॉपिक को. सो रीडर इज इन द माइंड ऑलरेडी कन्विंस्ड कि जो भी बात आप लिख रहे हैं, एग्जामिनर इन द माइंड इज ऑलरेडी कन्विंस्ड दैट यस, दिस इज मेकिंग सेंस. इन द एंड एट द एंड ऑफ द डे, इट इज द एग्जामिनर हु इज चेकिंग योर आंसर कॉपी, जिसको आपने ये सेंस ऑफ सैटिस्फैक्शन देना है. नाउ व्हाट आर सर्टेन टिप्स टू मेंटेन फ्लो एंड कोहेरेंस? Now you create an outline before you start essay writing. How will this help? This will help you to organize your thoughts. वो जो excitement आती है, वो जो sense of excitement आ जाती है कि अरे ये तो मेरे को आता है, ये तो मेरे को आता है, उस excitement को थोड़ा आप channelize कर सकते हो, और इसको ensure कर सकते हो कि इस excitement में आप अपने essay का एक logical structure बना सकें. Then use certain transition words or phrases which can connect your ideas. Now transition words and phrases, they signal to the reader that how the ideas in your sentences, paragraphs and sections, they are related. Then revise and edit your essay very very carefully. एक बार आपने अपना essay लिखना खत्म कर दिया, take some time to probably go through the essay again, revise it, make sure कि आपके जो ideas हैं वो logically connected हैं, ताल मेल में है, सुर ताल में है. Now for example, ये topic है social media and its impact on society, a very very generic topic, very generic topic. Now paragraphs in the body of the essay. तो यहां पे दो पैराग्राफ्स हैं, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताना चाहता हूं कि क्या ये कोहेरेंट है कि नॉन कोहेरेंट है. सोशल मीडिया कैन लीड टू साइबर बुलिंग. तो इस पैराग्राफ में बात की जा रही है कि साइबर बुलिंग इज व्हेन समवन इज यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन टू बुली अ पर्सन. साइबर बुलिंग की डेफिनेशन लिख दी, बाय सेंडिंग मैसेजेस,
through digital platforms, offensive messages trying to intimidate the other person. Cyberbullying can have serious consequences for the victim, including emotional distress, low self-esteem, or even could lead to the victim committing suicide. सेकेंड पैराग्राफ में लिखा है सोशल मीडिया कैन ऑल्सो लीड टू एडिक्शन. ना एक पैराग्राफ में साइबर बुलिंग की बात आई है, दूसरे पैराग्राफ में एडिक्शन की बात आई है. सोशल मीडिया एडिक्शन एक रियल प्रॉब्लम है जो कि लोगों को इंपैक्ट करता है. जो लोग एडिक्टेड हैं सोशल मीडिया पे, वो दिन रात सोशल मीडिया पे बैठे दूसरों के अकाउंट चेक करते रहते हैं, कंटेंट पोस्ट करते रहते हैं, और ये सब एक्टिविटी, उनके सोशल मीडिया की एक्टिविटी उनके डे टू डे काम, डे टू डे स्टडीज और डे टू डे रिलेशनशिप्स के साथ इंपैक्ट होती है. नाउ थिंक अगेन. मैंने यहां पे सोशल मीडिया का एक साइबर बुलिंग का एस्पेक्ट डिस्कस किया, सोशल मीडिया का एडिक्शन का एस्पेक्ट डिस्कस किया. थिंक अगेन कि क्या इसमें कोहेरेंस थी, क्या इसमें आपको कोहेरेंस दिख रही है. थिंक अगेन. नाउ फ्लॉज क्या है. एसे हैज पुअर कोहेरेंस फॉर सेवरल रीजंस. पहला, जो बॉडी पैराग्राफ्स हैं वो लॉजिकली कनेक्टेड नहीं होते हैं. जो पहला बॉडी पैराग्राफ है वो साइबर बुलिंग के बारे में बात कर रहा है. सेकंड पैराग्राफ बात कर रहा है सोशल मीडिया एडिक्शन के बारे. देखो, बॉडी तो बना दी आपने ऐसे की, लेकिन कनेक्ट भी तो होना चाहिए ना, कनेक्शन भी तो जरूरी है. अब साइबर बुलिंग और सोशल मीडिया एडिक्शन दो डिफरेंट बातें हो चली. ये ऐसे ज्यादा कोहेरेंट हो सकता था कि अगर या तो साइबर बुलिंग के बारे थोड़ा और लिख दिया होता अगले पैराग्राफ में, या सोशल मीडिया एडिक्शन के बारे थोड़ा और लिख दिया होता पहले पैराग्राफ में. पहले साइबर बुलिंग के बारे लिखा, अब्रप्टली एंड करके एडिक्शन के बारे लिख दिया. व्हाट वाज लैकिंग? देयर वाज नो ट्रांजिशन. देयर वाज नो ट्रांजिशन एट ऑल. व्हाट इज द राइट अप्रोच? लेट्स अंडरस्टैंड द राइट अप्रोच. तो सोशल मीडिया एडिक्शन के बारे हमने यहां पे दो पैराग्राफ्स लिख दिए. सोशल मीडिया एडिक्शन के बारे हमने पहले डेफिनेशन दे दी कि व्हाट इज सोशल मीडिया एडिक्शन ऑल अबाउट कंपल्सिव यूज ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, जहां पे आप इतना ज्यादा व्यस्त है सोशल मीडिया पे कि आपकी डेली लाइफ, आपके रिलेशनशिप्स इंपैक्ट हो रहे हैं. सोशल मीडिया एडिक्ट्स घंटा घंटा स्पेंड करते हैं अपने अकाउंट को चेक करने में, अपडेट्स पोस्ट करने में, एटसेट्रा एटसेट्रा. और सोशल मीडिया एडिक्शन का अब कॉन्सिक्वेंस की बात कर ली इस पैराग्राफ में कि इट कैन लीड टू प्रॉब्लम्स लाइक आइसोलेशन एट वर्क, आइसोलेशन एट स्कूल. आप अपने आप में ही बिजी हैं, बस आप डिजिटल ही टाइम स्पेंड कर रहे हैं, फिजिकल रियल दुनिया में लोगों के साथ मिल नहीं रहे हैं. सो यू नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस इन बिटवीन रियल एंड रील. आपको इसके बारे में समझ ही नहीं आ रहा. मतलब तो कहने का मतलब यह है कि आपने सोशल मीडिया एडिक्शन के बारे दो एस्पेक्ट्स यहां पे डिस्कस कर लिए, दो पैराग्राफ्स में यहां पे आपने डिटेल में डिस्कस कर लिया, और कंक्लूजन में आपने सोशल मीडिया एडिक्शन के बारे ही यहां पे लिखा कि एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम है विच रिक्वायर्स अटेंशन. तो यानी कि आपने कंक्लूड एक ऐसे तरीके से किया जहां पे एक डायमेंशन को आपने अच्छी तरह से समझाया है और उस डायमेंशन को ही अच्छी तरह से आपने कंक्लूड किया. तो आई होप फ्लो और कोहेरेंस की बात आपको इस वीडियो से समझ आई होगी. मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में. थैंक यू. तो आपने देखा फ्लो और कोहेरेंस के बारे कि कितना जरूरी है अपने ऐसे में फ्लो और कोहेरेंस बनाए रखना. और आपको ये बात बताना चाहता हूं कि अच्छे लोग, अच्छे रैंकर्स जो कि रैंक इंप्रूवमेंट के लिए इस बार अपना पेपर देंगे, वो भी अपने ऐसे में स्ट्रगल करते हैं फ्लो और कोहेरेंस बनाए रखने के लिए. तो यदि आप एक मेंटरशिप की तलाश में हैं, अगर आप एसे टेस्ट सीरीज प्लस मेंटरशिप की तलाश में हैं, तो यहां पे आपकी तलाश खत्म होती है. हम एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव एसे टेस्ट सीरीज प्लस मेंटरशिप का प्रोग्राम लेके आए हैं उन बच्चों के लिए, उन कैंडिडेट्स के लिए जो इस बार अपना एसे का पेपर मेंस में दे रहे हैं. आप में से कुछ बच्चे ये भी हो सकते हैं जो शायद रैंक इंप्रूवमेंट के तौर पे अपना पेपर दे रहे हो, एंड परहैप्स यू आर वांटिंग टू गेट दोस एक्स्ट्रा 25, 30, 35 मार्क्स टू गेट अ गुड रैंक. सो देयरफॉर ये कुछ फीचर्स हैं दोस्तों इस कोर्स के. इस कोर्स का नाम है सूरमा, जहां पे इंट्रोडक्टरी 3 लेक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे ऑन द आर्ट ऑफ एसे राइटिंग, बेसिक प्लस स्ट्रक्चर प्लस टेक्निक. आपको यहां पे 2 सेक्शनल लिस्ट प्लस 2 FLTs. तो ऑल इन ऑल यहां पे आपको 24 एसेस का मॉडल PDF अलॉन्ग विद द रिकॉर्डेड वीडियो आपको देखने को मिलेगा. बिकॉज टेस्ट में तो आपके पास ऑप्शन है, एक FLT में 8 टॉपिक दिए गए हैं, आप 2 टॉपिक्स के ऊपर ऐसे लिखेंगे, लेकिन जो बाकी टॉपिक्स रह गए उसका क्या, आप उसके ऊपर ऐसे नहीं लिखेंगे. लेकिन हमारा तो कर्तव्य है उसका आपको डिटेल में PDF सोल्यूशन और वीडियो प्रोवाइड करना.
तो उन टॉपिक्स में से जो आपने नहीं लिखे हैं उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और चाहे तो उसको भी मेरे द्वारा इवैल्यूएट करवा सकते हैं, राइट। वीडियो सॉल्यूशंस यानी कि जितने भी कंटेंट लेक्चर्स यहां पे रहेंगे वो सारे रिकॉर्डेड वीडियो सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे। लाइव सेशंस भी होंगे, रिकॉर्डेड सेशंस भी होंगे। लाइव जूम सेशंस में आपके डाउट सेशंस होंगे, आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं मेंटरशिप कॉल्स के लिए। ये फीचर हमने इस साल अपने सभी ऐसे प्रोग्राम्स में शुरू करा है कि टेलीफोनिक कॉल के जरिए यदि आप अपने डाउट सेशंस एड्रेस करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, बिकॉज कई बारी जूम सेशन का जो टाइम होता है वो बच्चों को कई बार नहीं सूट करता। इवैल्यूएशन कंप्लीटली मेरे द्वारा ही प्रोवाइड की जाएगी। मास्टर क्लास यहाँ पे स्लीपी क्लासेस के फाउंडर्स शेखर सर और प्रेरणा मैम के द्वारा दी जाएगी, और एक और बहुत इंटेंस लेक्चर होगा जहां पे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट कोट्स एंड एनेक्डोट्स, ये रिकॉर्डेड वीडियो क्लास होगी। ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए कह रहा हूं बिकॉज ये इंपॉर्टेंट कोट्स और एनेक्डोट्स का इस्तेमाल आप अपने एसे के इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन में डिपेंडिंग अपॉन योर विजडम कर सकते हैं। और दोस्तों यदि आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स नहीं देखने हैं लेकिन केवल और केवल आपको सिर्फ टेस्ट देने हैं और टेस्ट इवैल्यूएट करवाने हैं, तो उसके लिए यहां पे मैं एक ऑफर लेके आया हूं, 2 सेक्शनल टेस्ट प्लस 2 FLTs, दिस एट द कॉस्ट ऑफ 2700। यहां पे आपको केवल मॉडल एसे का PDF दिया जाएगा, वीडियो नहीं दिया जाएगा, सिर्फ मॉडल एसे का PDF दिया जाएगा। ओनली कंटेंट ऑफ मॉडल एसेज, नो वीडियोस। इवैल्यूएशन यहां पे भी मेरे द्वारा रहेगी। इसका नाम है योद्धा। योद्धा क्यों? ये उन बच्चों के लिए जो कि अपने आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और वो सेल्फ स्टडी के जरिए ही विद लिटिल गाइडेंस एंड इवैल्यूएशन अपने स्कोर को इंप्रूव करना चाहते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन योर लेवल ऑफ प्रिपरेशन एंड योर कंफर्ट आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप योद्धा लेना चाहेंगे कि सूरमा लेना चाहेंगे। उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर आपने एंजॉय किया होगा। मिलेंगे बहुत जल्द। हमारे जो फ्री में जो यूट्यूब लेक्चर्स हैं फ्राइडे और संडे को वो तो चलते रहेंगे। मिलेंगे बहुत जल्द हमारे बाकी ऑनगोइंग इनिशिएटिव्स में। थैंक यू, टेक केयर।